Good evening, everyone. My name is Someshwar. I welcome all of you to Shiva Sutra Knowledge Series session on behalf of Art of Living. नमस्ते, मैं सोमेश्वर आप सभी का आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की तरफ से ये शिव सूत्र नॉलेज सेशन के दूसरे सत्र में स्वागत करता हूँ। अपने एंकर संगीता जी इज आल्सो हियर विद अस। जय गुरुदेव संगीता जी। Jai Gurudev. Jai Gurudev. Just to let our viewers know, right now we are recording this session and we will be putting it across YouTube, and right now we are live on Facebook as well. So अपने YouTube के सारे जो viewers है और अपने जो Facebook के सारे viewers है और यहाँ पे अपने Zoom के जो participants है जो Zoom पे इसके साथ जुड़ चुके हैं, उन सभी का भी इस शिव सूत्र के दूसरे सत्र में स्वागत है। So let's take a quick recap of whatever we have heard today, and then we will continue we'll open this session for any question answer or any contribution from everybody. So इस सत्र की शुरुआत हम लोग 3 बार ओमकार का उच्चारण करते हैं, गुरु वंदना कर लेते हैं और गुरु वंदना के साथ बाद हम लोग इस सत्र की शुरुआत करते हैं। So let us all close our eyes. आंखें बंद कर लें। एक साधारण सांस अंदर ले और छोड़ दे। एक गहरी लंबी सांस अंदर ले और छोड़ दे। ओमकार उच्चारण के लिए गहरी लंबी सांस अंदर ले गुरु वंदना से गुरु का आवाहन करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। अपने गुरु का आवाहन करें। अपने मुख से निकलने वाले हर एक शब्द और हर एक वाणी गुरु के विजन के लिए, गुरु के संकल्प के लिए प्रेरणादायी हो, ऐसी प्रार्थना करें। अपने बीच गुरु का सानिध्य महसूस करें। And slowly and gradually you may open your eyes. धीरे से अपने प्यारी सी आंखें एक मुस्कान के साथ खोल सकते हैं। Jai Gurudev. So we have been listening to Gurudev Shri Ravi Shankar ji on Shiva Sutra. This particular version is available on Art of Living app. You can download it on the iOS store if you have an Apple phone, or you can download it from a Play Store if you have the Android phone.
So that particular version is available in Hindi because Shiva Sutra got recorded in Hindi. So now what we will be doing, we'll just take a recap of that particular version in English as well as in Hindi. अभी अभी हमने गुरुदेव श्री रविशंकर जी को शिव सूत्र के ऊपर डे 2 के कमेंट्री देते हुए सुना। यह शिव सूत्र ऋषिकेश में रिकॉर्ड हुआ था। उस वक्त यह हिंदी में था, तो आप यदि इसको सुनना चाहते हैं डायरेक्टली गुरुदेव से, तो आप आर्ट ऑफ लिविंग ऐप को प्ले स्टोर से, यदि एंड्रॉइड फोन है तो डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपके पास एप्पल फोन है तो आप iOS से, वहां पे iOS से तो वहां पे एप्पल के स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के समरी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। सो गुरुदेव स्टार्ट, आज का जो सेशन है, गुरुदेव स्टार्ट्स विथ चैतन्य आत्मा। जो पहला सूत्र है जो गुरुदेव ने कल भी हमें बताया था, उसी के बारे में गुरुदेव फिर से इसको दोहराते हैं, उसके बारे में डिटेल्ड में हमें बताते हैं। Yesterday Gurudev told us one sutra called Chaitanya Atma. Chaitanya is referred here as a consciousness, a divine power, what we refer as a consciousness, awareness, self, soul. We address that Chaitanya, that Chaitana, that power, that Shakti with different names. So when that Shakti is there within us, then how does that actually manifest? So Gurudev explains that the child smiles 400 times in a day. As a child grows and becomes a youth, he smiles around 17 times a day. And when he becomes an adult, then he hardly smiles. And if at all he has done any doctorate and become any professor or scientist, they feel like smiling is a crime for them. They want to be very stiff. But Gurudev says that is not what the lakshan, that is not the sign of having an chaitanya. No? Over a period of time, it actually creates an inertia. जड़त्व हमारे अंदर आ जाता है ना, हम लोग वो प्यारा सा स्माइल, वो मुस्कुराना जो बचपन में हमारे लिए बहुत ऑब्वियस होता है, हम लोग वो मुस्कुराना ही भूल जाते हैं, वो आनंद को अनुभव करना ही भूल जाते हैं. We just forget to smile as we grow further. We just forget to remain happy. So that is what Gurudev explained, that if when there is that Chaitanya is there, that consciousness is very eminent within us, then you can see all these qualities in a being. The smiling, the happy being. So what is it that creates, what is it that happens when we actually grow and we actually tend to lose and get into more inertia? So next sutra Gurudev hame yahan pe batate hain, Jnanam Bandha. That knowledge becomes the bondage, that knowledge itself becomes an obstacle in the path of our progress. What happens that this life is very new every moment. गुरुदेव कहते हैं कि नेक्स्ट सूत्र बताते हैं कि क्या ऐसा होता है, क्यों हम लोग मुस्कुराना भूल जाते हैं, क्यों वो आनंद में रहना हम लोग भूल जाते हैं. जैसे हम लोग बड़े होते तो बोलते, गुरुदेव बोलते कि नेक्स्ट सूत्र बताते हैं ज्ञानम बंधः. तो बोलते हैं जो ज्ञान होता है वही हमारे लिए एक बंधन के रूप में बाधा बन के हमारे सामने आ जाता है. तो कहने लगते हैं, अरे मैंने तो बहुत पढ़ाई लिखाई कर ली, मैंने तो सब शास्त्र पढ़ लिए, मैंने तो सब जान लिया, अभी मुझे कुछ जानने की इच्छा नहीं है. I know everything. ना? When we go through all the scriptures, read all these shastras, go through our academics, attain some degrees in our life, and then we start saying, oh, I know it all. I have heard about this. I have read about this. You know what? I know it all. Gurudev कहते हैं, this life is new. Every moment this life is new, but those impressions that we carry in our mind that I know it all, then you stop seeking further. But बोलते the लक्षण, चैतन्य का लक्षण क्या होता है, हर समय ताजा होता है, हर समय नया होता है, हर समय कुछ जानने की इच्छा शक्ति वहां पे उपलब्ध रहती है. बोलते दिस जो जानने की जो शक्ति है, no, that ability to know the things is available in every particle of this universe. ना कण कण में बोलते जानने की शक्ति होती है. तो गुरुदेव gives us example of that particle of a sand and an ant.
what is the difference between these two? If you touch that ant will go, it will just keep running here and there. You know what? Did it recognize that, oh, there is some harm, there is probably something going to happen to me, and just to protect itself, it just start moving here and there. What about the sand, that sand particle? Then Gurudev says that Chaitanya is there, that ability is there in sand also, but it is so less that it is not obvious, it is not visible. Then and he also gives an example of the plants, no, about the emotions. So गुरुदेव हमें बताते हैं कि जो एक रेत का एक कण होता है और एक मूंगी होती है, एक एंट होती है। तो बोलते हैं कि देखो कैसे उसको, चींटी को हम लोग थोड़ा सा छूने लगते हैं तो कैसे इधर उधर भागती है अपना जी बचाने के लिए, वो जान लेती कि उसको खतरा है। वो बोलते हैं वो जानने की शक्ति, वो चैतन्य जो रेत का कण होता है उसमें भी होता है, लेकिन वो अपने आप को इतना अच्छी तरह से अभिव्यक्त नहीं कर पाते। एक कुत्ता होता है, उसको आप थोड़ा सा रोटी खिलाओ, वो अपने पूंछ हिलाने लगता है। तो बोलते जो प्राणी होते हैं, जो प्राणी मात्र होते हैं, उनमें वो अभिव्यक्त करने की जो होती है, दे हैव दैट एबिलिटी टू एक्सप्रेस दैट। बोलते बट द स्टोन आल्सो हैव इट, बट इट इज सो लेस, the particle of a sand also have it, but it is so less that they are not able to express their emotion the way animals can do. Then Gurudev batate even the plants can do have their emotions. If you take the water and start pouring water to the plants, they smile, they feel very happy about it. If you take an axe and कुड़ाली लेके आप उनको तोड़ने जाओ तो वो डरते हैं, रोते हैं. If you take an axe and go them, then they also will cry. They also have those emotions, but their ability to express those emotions are very less. The way it is very possible, very obvious and eminent in animals, the way they are able to express their emotion, plants are not able to express, but it is definitely there. That Chaitanya is definitely there. Then गुरुदेव आगे चल के इसको बताते हैं कि ये जो इनर्शिया जो आ जाता है ह्यूमन में, ऐसा जो अभिव्यक्त होता है, फिर उसको वो इनर्शिया बनाता क्या है, वो इनर्शिया आ कैसे जाता है? तो बोलती है मैंने सब जान लिया, ये ज्ञान जो है, ज्ञान बंधन में जाता है. When we say that I know it all, then your progress, their ability to know more in life get restricted. So that ज्ञान बंधन बन जाता है. आगे चल के बोलते हैं कि डिवाइन जो है, that divine is not something like I know it all. That divine is all new. That creation is all new. So if you look at it, this body, if you look at all these अपने अस्तित्व के सारे स्तर, they are ever changing. They are continuously changing. अपने सेल्स, बॉडी के सेल्स बदल जाते हैं, अपनी त्वचा बदल जाती है. No, this everything is constantly changing. Even अपना मन बदल जाता है, अपनी भावनाएं बदलती रहती है. No, तो बोलते ये सब कुछ जैसे बदल रहा है. How can you say that I know it all? Do we really know it? This body itself is so much miracle. Today, even the greatest science and even the medicine faculty of medicine do not know how to create a blood. Now, do we know what is all there? अपने शरीर को तो हम लोग ठीक से जान नहीं पाए और कहते हैं कि मैंने सब जान लिया. How can we know? This universe is so big. यह विश्व इतना बड़ा है, कैसे हम लोग कह सकते हैं कि मैंने सब जान लिया? तो बोलते हैं जितना आप ज्यादा जानते हो, उतना जानते हो कि मैं कितना कम जानता हूँ. The more you know how less you really know. So that is where जब ये अनुभव अपने आप को होने लगता है तो ज्ञान के बंधन से हम लोग छूटने लगते हैं. और जब ये ज्ञान के बंधन से हम लोग निकलते हैं तो वो स्वात्मानंद प्रकाशा, you experience that divinity within, you experience that शिव तत्व within. जो ये मैल जो रहता है, आजू बाजू का मैल थोड़ा सा साफ हो जाता है तो जो प्रकाश होता है वो स्वात्मानंद प्रकाशा, वो फूट फूट के वो आनंद, वो फूट फूट के वो जो प्रकाश का स्वभाव ही है. इट इज द quality of a light to spread, and then that happiness, that light automatically spreads. It becomes very obvious and imminent when this other ignorance is removed. Then आगे चल के गुरुदेव हमें और एक सूत्र बताते हैं कि इसे यदि हम लोग और थोड़ा सा ठीक से देखना है तो नया सूत्र बताते हैं आज गुरुदेव, इज योनि वर्ग कला शरीरम.
So this body and this, there are so many species in this world. If you observe, there are so many species. No, this our human life is one of them. Yeah. So there are so many animals, there are so many amoebas, there are so many bacteria, there are so many viruses. No, there are so many sea creatures around. There are so many of them. No, so many creatures. No, birds are there. So many of them. No, so बोलते this एक छोटा सा जो अपना वीर्य का कण रहता है, स्पर्म रहता है, वो कैसे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ले लेता है. नो, the small tiny sperm, how it actually starts growing, how it actually develops a life within, how that small tiny sperm takes the form, it forms the body parts, no? Then it gives us so many different powers. There are पंचेंद्रिय अपने जो होते हैं वो क्रिएट होते हैं, 5 senses जो होते हैं, with the help of those 5 elements they get created. It is so amazing Gurudev express. ये कितना कितना अमेजिंग है, सो वंडरफुल कि कैसे छोटा सा कण, एक वीर्य का कण कैसे बड़ा रूप ले लेता है, कैसे जानने की शक्ति को अपने अंदर भीतर जागृत कर लेता है, कैसे जो पंच तत्व होते हैं, कैसे वो पंच महाभूतों से कैसे अपने पंचेंद्रिय, अपने कर्मेंद्रिय तैयार हो जाते हैं. The ability to sense, the ability to hear, the sense of sight, ability to see, the sense of taste, ability to taste something, the sense of smell, ability to smell something, and the sense of touch. No, किसी को स्पर्श करने की शक्ति, no, हमको देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, टेस्ट करने की शक्ति, सूंघने की शक्ति और स्पर्श की शक्ति, कैसे सारी शक्तियां अपने उधर जन्म ले लेती है ना. इट इज रियली अमेजिंग. नो, तो बोलते ये जो 5 एलिमेंट्स है, ये जो पंच तत्व है, इसी का एक शरीर एक के रूप में माध्यम से ये कहते हैं कि ये कला ही है, इनका एक्सप्रेशन इटसेल्फ इज ये शरीर है. तो बोलते हैं कि फिर सिर्फ इस शरीर के ऊपर इस जो तैयार हुआ ऐसा सिर्फ मत देखो. बोलते हैं कि रिस्पेक्ट ऑल द स्पीशीज इन दिस वर्ल्ड, सभी जो प्राणी मात्र है उनके ऊपर भूत दया करो. हाउ कंपैशन, करुणा का भाव उनकी तरफ देखो. एंड हम लोग उनको रिस्पेक्ट करें, उनका आदर करें, सम्मान करें. Gurudev further explains how this entire small tiny sperms take all these forms and how beautiful it takes all the abilities of all these 5 senses in our body. So the way this body is created, the way same way the other species are also created in this world. So honor and respect entire species of this world, honor and respect them. Then Gurudev बोलते हैं, आगे चल के बताते हैं कि this entire जो यूनिवर्स है, you look that universe also at itself is a shariram, no, the kala shariram. This not just his body, but this entire universe is also an शरीर itself, ना. इस पूरे विश्व को भी एक कला के रूप में हम लोग देखें. देन यदि ऐसा हो जाता तो फिर क्या क्या होता है? Then you do not have any hatred towards the animals. Then you do not when you understand this entire universe itself is a kala shariram, then you probably do not want to waste the water, because आप वो पानी को भी इसी रूप में देखेंगे, आप वो environment को भी इस रूप में देखेंगे, आप जाके वो पेड़ों को नहीं तोड़ेंगे. You will see that this entire universe also has your own kala, its own kala shariram. इस तरह से गुरुदेव हमें योनि वर्ग कला शरीरम के बारे में बताते हैं. और फिर यहाँ पे कि गुरुदेव आज का यह सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं. सो दिस वाज जस्ट अ ब्रीफ समरी ऑफ व्हाट वी हर्ड टुडे. नाउ वीड लाइक टू ओपन दिस सेशन फॉर ऑल आवर ऑडियंस. यदि आपके मन में कुछ प्रश्न है तो आप यू कैन रेज योर हैंड, यू कैन टाइप इट इन द चैट. और आपको कुछ कंट्रीब्यूशन या आपका अनुभव आज के सेशन से रिलेटेड है तो यू आर वेलकम टू एक्सप्रेस एंड शेयर योर एक्सपीरियंस विद अस. Jai Gurudev. Over to you all audience. So we'll start. We'll begin with Sangeeta ji. Sangeeta ji, over to you. Thank you. It was awesome. Lovely it was. The way you took it and the way you explained it. So what happens when your consciousness arises, so you become, your life becomes a celebration, right? I could only add that to that. That is the thing. वो जीवन जो है वो उत्साह रूप हो जाता है, उसमें प्रेम झलकने लगता है और आनंदमय हो जाते हैं, राइट?
So let us all experience this with the Shiv Sutras over here, listening to Gurudev and of course to Someshwarji. Thank you. Jai Gurudev. Thanks for sharing your experience, Sangeeta ji. कोई कुछ प्रश्न पूछना चाहता है या if you want to contribute, you are welcome to do so. Can raise your hand. We'll add you to the spotlight and आप बात कर सकते हैं. शशि जी, कमलेश जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? Would you like to say something? Yeah, you can unmute yourself now and you can speak. इतना अच्छा बताया ना कि जब हम कोई भी ज्ञान ज्यादा प्राप्त कर लेता है, जैसे चाहे कोई डॉक्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, तो वो क्या समझने लगता है कि उसने सब कुछ जानता है, सब कुछ जानने की अभी जरूरत ही नहीं है। तो गुरुजी ने कितना अच्छा बताया कि ज्ञान भी बंधन बन जाता है, ज्ञानम बंधन। जबकि वो अपने शरीर को और अपने आप को ही जब नहीं जान सक पाता, तो फिर वो इतना संसार में इतना जो है उसको कैसे जान सकता है। जो है हमारा शरीर और सब बदल रहा है और कितना परिवर्तन हो रहा है, तो ये सब जानने के लिए उसको हर क्षण तैयार भी रहना चाहिए ना, लेकिन वो नहीं कर पाता, तो ज्ञान बंधन हो जाता है क्योंकि उसे लगता है मैं सब जानता हूँ। Thank you so much, Shashi ji. Yes, absolutely. Kamlesh ji, would you like to say something? Yeah, please नहीं go ahead. बेटा, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये बार बार अगर हम सुनेंगे, रिपीट बार बार सुनेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि करने से नहीं होगा। किताबें पढ़ लो, सुन लो, सत्संग में भी गुरुदेव को कई बार उनकी पहले भी कई रिकॉर्डिंग्स मैंने सुनी है, पर इसका मनन करो बार बार, है ना। और बार बार चिंतन करने से, गुरुदेव ने एक बार सत्संग में बोला था कि ज्ञान चाहिए, लेकिन ज्ञान साबुन की तरह से है कि जैसे शैम्पू लगाया और फिर धोना है। तो इस तरह इस बंधन से हम लोग छूट जाएंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस कर रहे हैं। और आपने बहुत सुंदर बोला बेटा, लेट मोर एंड मोर पीपल शुड लिसन, सो आई एम वेरी थैंकफुल। जय गुरुदेव। या जय गुरुदेव। दादी ने कितना अच्छी तरह से बताया ना, ज्ञान जो है वो साबुन की तरह अपनी जिंदगी में आप यूज करो। हाँ, साबुन लगाते हैं, साबुन को फिर क्या करते हैं, पानी से धो देते हैं। ये तो क्या होगा, तो बोलते हैं फिर दुर्गंध आने लगेगी, फिर वो जो नेगेटिव इमोशंस आ जाते हैं, मैं सब जानता हूँ, फिर अहंकार, वही बंधन, ये वही दुर्गंध, सबसे बड़ा बंधन है। हाँ, वो फिर बंधन बन जाता है, वो दुर्गंधी बन जाती है। फिर ऐसे व्यक्ति के साथ ना कोई बात करना चाहता है और ना ऐसे व्यक्ति के साथ कोई रहना चाहता है, तो वो दुर्गंधी अपने अंदर पैदा ना होना दे। यही बहुत सुंदर बोला आपने बेटा, वेरी गुड। इसको बार बार सुनो, मनन करें, चिंतन करें तो स्वतः ही आने लगता है। गॉड ब्लेस यू बेटा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव दादी, थैंक यू सो मच। जय गुरुदेव। निरंजना बोलना चाहती है, निरंजना जी। हाँ निरंजना जी बोलिए, आप अपना वीडियो चालू कर लीजिए दादी। जय गुरुदेव। हाँ जय गुरुदेव, बोलिए। आप शब्द समझाते जैसा दिमाग में भी जाते, अरे जो अपन लड़ी पड़ी पलटे ना, जैसे कि हम एक बार खाना खाते तो पेट तो नहीं भरता है, 2-3 बार खाना पड़ता नहीं पड़ता है। ऐसे ही अभी जो ध्यान आप देते हैं ना, और जितनी बार देते ना उतनी बार हम लेंगे तो कम है, पर आपका तो जो सुपर समझाते हो, आपका तो बहुत धन्यवाद देना चाहिए। इतनी छोटी उम्र में इतना ज्ञान है आपके पास और हमें बांट रहे हो, बस वही आनंद है हमको बहुत। धन्यवाद दादी, आपने जो भी अप्रिशिएशन दिया डिविनिटी को ही जाता है, गुरुदेव है। हमने तो प्रार्थना से ही शुरुआत किया कि अपने मुख से निकलने वाला हर एक शब्द, अपनी वाणी का हर एक शब्द गुरुदेव की प्रेरणा से हो, तो वो है बताने वाले हुए, हम तो बस एक निमित्त मात्र है।
ठीक है, सो आज का यह सेशन हम लोग यहीं पे समापन करते हैं, फिर से कल मिलेंगे पार्ट 3 में, डे 3 में। जय गुरुदेव।